Today our topic is calls in advance. Now what is this calls in advance? You have already done calls in arrear. Calls in arrear means when a shareholder fail to pay his due amount. That may be allotment, that may be first call, that may be final call. That is calls in arrear. And calls in advance, from the name we can say the amount paid in advance. That means if provisions permitted in the articles of the company can receive calls in advance. That means any shareholder can pay his due amount in advance. For example, suppose a shareholder holding 500 shares and the company called up to allotment, but that shareholder paid the entire amount. That means all the call money with his allotment. That means he is paying his call money in advance with the allotment. This is called calls in advance. Now what is written here? A company may, if its articles of association allows, accept the amount against the call or calls not yet made. मतलब जो कॉल अभी तक हुआ नहीं, कंपनी कॉल ही नहीं किए, लेकिन उसके पैसे कोई शेयरहोल्डर दे दिए और उसको कंपनी एक्सेप्ट भी कर लिए. द अमाउंट सो रिसीव्ड इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस. दैट मीन्स जो अमाउंट पहले से जो कॉल नहीं हुआ वो रिसीव कर लिए कंपनी, उसे कहते हैं कॉल्स इन एडवांस. বাংলায় আমরা কি বলছি? কলস ইন অ্যাডভান্সকে বাংলায় বলা হচ্ছে অগ্রিম প্রাপ্ত তলবি অর্থ. তার মানে কোম্পানি শেয়ারের মূল্য কিস্তিতে আদায় করার সময় কোনো শেয়ার গ্রহীতা যদি তলব করার আগেই কোনো কিস্তির অর্থ পরিশোধ করে দেয়. আবার বলছি, অ্যালটমেন্ট কল করা হয়েছে, অ্যালটমেন্টের সাথে কোনো একজন শেয়ার হোল্ডার বা দুজন শেয়ার হোল্ডার তার কল মানি, ফার্স্ট কল ফাইনাল কলের টাকাও দিয়ে দিয়েছে. এই যে ফার্স্ট কল ফাইনাল কলের টাকাটা দিয়ে দিল, এটাকে আমরা বলছি অগ্রিম প্রাপ্ত তলবি অর্থ. নাও there must be some journal entries for this calls in advance. When company receives this amount, company pass a journal entry, that is बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस. अगर 500 शेयर के लिए कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है तो 500 के लिए कॉल मनी सपोज अलॉटमेंट के साथ दे रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का जो मनी है वो एक साथ मिल गया बैंक को, कंपनी को. सो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस. एंड व्हेन दैट कॉल मेड, at that time there must be an adjustment, that is calls in advance account debit to call account, respective call account. फर्स्ट कॉल के टाइम पे टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल के टाइम पे टू फाइनल कॉल अकाउंट. Now, the shareholders are paying, some shareholders are paying amount in advance. That means they may get some interest. They may get some interest for this, and the rate of interest is at the rate of 12% per annum on calls in advance. And this is from Companies Act 2013. Before 2013, in case of Companies Act 1956, this rate of interest was 6% per annum. You have to remember both these points, because in the question what is written, Companies Act 1956 or Companies Act 2013, you have to remember these two. If in the question it is mentioned what is the rate of calls in advance, what is the rate of interest for calls in advance according to 1956 Companies Act, then you have to write 6% per annum. And if it is written what is the rate of interest on calls in advance according to Companies Act 2013, then your answer will be at the rate of
12% per annum. So remember this for your MCQs. डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट मतलब कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे बैलेंस शीट पे दिखाए जाते हैं. कॉल्स इन एडवांस इज अ लाइबिलिटी. वाई लाइबिलिटी? बिकॉज शेयर होल्डर्स पेड इन एडवांस, सो दे आर liable to get, they have right to get dividend for that amount. So this is a liability. This is a liability for the company, and so it is shown in the equity and liability part. बैलेंस शीट के जो लाइबिलिटी साइड है वहां पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट पे यहाँ ये करंट लाइबिलिटीज के अंदर पे दिखाए जाते हैं, एंड सब एज अ सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज. ये है बैलेंस शीट पे कहाँ पे दिखाए जाते हैं. अभी हम लोग कुछ सम्स करके देख लेते हैं कि कॉल्स इन एडवांस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं. यहाँ पे एक सम है. Obuni Limited issued 25,000 equity share of ₹10 each. Issued share कितना है? 25,000 of ₹10 each. Payable ₹2 on application, ₹3 on allotment, ₹3 on first call and ₹2 on final call. 4 installment है. Application 2, allotment 3, first call 3 and final call 2. All money were duly received except one shareholder holding 100 shares who paid in full along with allotment. तो क्या हुआ? एक शेयर होल्डर जिन्होंने 100 शेयर होल्ड करके रखे थे उन्होंने उनका फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का मनी अलॉटमेंट के साथ दे दिए. नाउ कम टू द जर्नल एंट्रीज. एकदम जैसे हम लोग जर्नल किए थे कंपनी में वैसे ही जर्नल करेंगे, सिर्फ कॉल्स इन एडवांस जहां पे पुट करना है वहां पे हम लोग पुट करके देखेंगे. देखो पहले तो एप्लीकेशन मनी, कोई यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नंबर ऑफ शेयर्स इज 25,000. एप्लीकेशन मनी पर शेयर इज ₹2. So 25,000 into 2, 50,000 received by the company. This is receive entry. Now it transferred to capital account. Share application account debit to equity share capital account. Full money transferred to capital account because there is no oversubscription or undersubscription. Second, now हम लोगों को allotment का due entry करना है. क्या है? Share allotment account debit to equity share capital account. Number of shares 25,000, ₹3 per share, so 75,000 is due entry. यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का कोई कुछ नहीं दिखाया जाएगा. कहाँ पे दिखाया जाएगा? जब रिसीव एंट्री होगा वहीं पे दिखाया जाएगा. तो चलो रिसीव एंट्री पे हम लोग चलते हैं. तो क्या हो रहा है देखो, बैंक अकाउंट डेबिट. पहले हम लोग एंट्री को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अकाउंट पे जाएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट. लेकिन ये जो बैंक अकाउंट है इसके दो पार्ट है. एक पार्ट है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जितना मिलना था, और दूसरा पार्ट है कॉल्स इन एडवांस जो एक्स्ट्रा मिलना है. जो हम जर्नल दिखाए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, एक ही साथ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. नाउ इन केस ऑफ अलॉटमेंट देयर इज नो कॉल्स इन एरियर. ऑल द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी, सो 25,000 into 3, 75,000 is allotment money. And what is the calls in advance? Calls in advance for one shareholder, he is holding 100 share into कितना दे रहे हैं? फर्स्ट कॉल के लिए ₹3 एडवांस दे रहे हैं, फाइनल कॉल के लिए ₹2 एडवांस दे रहे हैं. मतलब ₹5 उन्होंने एडवांस दे दिए. 100 into 5, 500. एंड इन केस ऑफ बैंक अकाउंट क्या होगा? ये है अलॉटमेंट पार्ट. 25,000 into 3. This is the allotment part, and this is the advance part. Advance मतलब calls in advance. 100 शेयर के लिए ₹5 एडवांस मतलब 500. तो बैंक में कितना रिसीव हो? 75,500. उसमें से 75,000 फॉर शेयर अलॉटमेंट एंड 500 फॉर कॉल्स इन एडवांस. क्या नरेशन है? Being allotment money received along with calls in advance of 100 shares. ये लिखना है. allotment money received along with calls in advance of 100 shares. Okay.
नाउ फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री कोई चेंज नहीं है क्योंकि कंपनी पूरे शेयर के लिए कॉल्स इन एडवांस पूरे शेयर के लिए कॉल करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल था 3 रुपीज, 25,000 इंटू 3 75,000। अभी हम लोग आएंगे रिसीव एंट्री पे। रिसीव एंट्री पे देखो 75,000 रिसीव नहीं होगा क्योंकि इसमें से 100 शेयर के पैसे पहले ही मिल चुके थे। कंपनी ऑलरेडी रिसीव्ड फॉर 100 शेयर्स इन एडवांस। That means company will now receive 24,900 shares. Company will now receive money for 24,900 shares. So in the bank account, entry क्या हो रहा है? पहले हम लोग entry को देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो होता ही है। और जो कॉल्स इन एडवांस हम लोग पहले एक अकाउंट क्रिएट किए थे उसको हम लोगों को एडजस्ट भी करना है डेबिट करके। नाउ ये जो लायबिलिटी था ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट। देखो बैंक में 25,000 के शेयर्स के पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि 100 शेयर्स के पैसे पहले ही मिल चुके थे। तो 24,900 शेयर्स के लिए 3 रुपीज करके 74,700। ओके, कॉल्स इन एडवांस को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन पूरे नहीं, जो फर्स्ट कॉल का था उसी को एडजस्ट करेंगे। 100 शेयर के लिए 3 रुपीज, ये एडजस्ट हो गए कितना रहा? 300। एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट में 75,000 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट कॉल में 75,000 ही ड्यू था। और इसको ऐड करके देखो ये 75,000 ही आ रहा है। ओके, अभी चलो हम लोग फाइनल कॉल के ड्यू एंट्री पे जाते हैं। अच्छा, नरेशन being first call money received on 24,900 shares and calls in advance adjusted for 100 shares. Share next entry final call के due entry, share final call account debit to equity share capital account, number of shares 25,000, कोई reduce नहीं होगा शेयर यहाँ पे, into ₹2, कितना ड्यू है? 50,000। फिर से बैंक अकाउंट डेबिट, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि 100 शेयर के पैसे पहले ही मिल चुके थे। कितना मिलेंगे? 24,900 शेयर्स के पैसे। सो 24,900 इंटू ₹2, 49,800। कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना है। 100 शेयर, उसमें से 3 रुपीज करके हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किए हैं। अभी हम लोग फाइनल कॉल में एडजस्ट कर रहे हैं 2 रुपीज क्योंकि फाइनल कॉल का ड्यू अमाउंट है 2 रुपीज। 100 इंटू 2, 200 पूरा एडजस्ट हो गया। और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 25,000 इंटू 2, 50,000। देखो यहाँ पे 200 एडजस्ट हुआ एंड फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हुआ 300, तो टोटल 500 डेबिट हुआ और यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट भी था 500। दैट मीन्स ऐसे हम लोग कॉल्स इन एडवांस जो अकाउंट है उसको पूरा एडजस्ट करके कंप्लीट करके नील कर चुके हैं। ओके, ये था कॉल्स इन एडवांस का पहला सम्स। डिस्क्लोजर इन बैलेंस शीट, मतलब कॉल्स इन एडवांस कहां पे बैलेंस शीट पे दिखाए जाते हैं। कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। व्हाई लायबिलिटी? बिकॉज shareholders paid in advance, so they are liable to get, they have right to get dividend for that amount. So this is a liability, this is a liability for the company, and so it is shown in the equity and liability part. बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड है वहां पे इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट पे यहाँ ये करंट लायबिलिटीज के अंदर पे दिखाए जाते हैं एंड सब एज अ सब हेड अदर करंट लायबिलिटीज। ये है बैलेंस शीट पे कहाँ पे दिखाए जाते हैं। अभी हम लोग कुछ सम्स करके देख लेते हैं कि कॉल्स इन एडवांस को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे एक सम है, ओबोनी लिमिटेड इशूड 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each। इशूड शेयर कितना है? 25,000 ऑफ ₹10 each। पेएबल ₹2 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड ₹2 ऑन फाइनल कॉल। 4 इंस्टॉलमेंट है। एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 एंड फाइनल कॉल 2। ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड except one shareholder
holding 100 shares who paid in full along with allotment. तो क्या हुआ, एक शेयर होल्डर जिन्होंने 100 शेयर होल्ड करके रखे थे, उन्होंने उनका फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का मनी अलॉटमेंट के साथ दे दिए. नाउ कम टू द जर्नल एंट्रीज. एकदम जैसे हम लोग जर्नल किए थे कंपनी में, वैसे ही जर्नल करेंगे, सिर्फ कॉल्स इन एडवांस जहां पे पुट करना है वहां पे हम लोग पुट करके देखेंगे. देखो, पहले तो एप्लीकेशन मनी, कोई यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नंबर ऑफ शेयर्स इज 25,000. एप्लीकेशन मनी पर शेयर इज ₹2. So 25,000 into 2, 50,000 received by the company. This is receive entry. Now it transferred to capital account. Share application account debit to equity share capital account. Full money transferred to capital account because there is no oversubscription or undersubscription. Second, now हम लोग को allotment का due entry करना है. क्या है? Share allotment account debit to equity share capital account. Number of shares 25,000. ₹3 per share, so 75,000 is due entry. यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस का कोई कुछ नहीं दिखाया जाएगा. कहाँ पे दिखाया जाएगा? जब रिसीव एंट्री होगा वहीं पे दिखाया जाएगा. तो चलो रिसीव एंट्री पे हम लोग चलते हैं. तो क्या हो रहा है, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट. पहले हम लोग एंट्री को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अकाउंट पे अमाउंट पे जाएंगे. बैंक अकाउंट डेबिट. लेकिन ये जो बैंक अकाउंट है इसके दो पार्ट है. एक पार्ट है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना मिलना था, और दूसरा पार्ट है कॉल्स इन एडवांस, जो एक्स्ट्रा मिलना है. जो हम जर्नल दिखाए थे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, एक ही साथ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं. क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट. नाउ इन केस ऑफ अलॉटमेंट देयर इज नो कॉल्स इन एरियर, ऑल द अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी. सो 25,000 into 3, 75,000 is allotment money. And what is the calls in advance? Calls in advance for one shareholder, he is holding 100 share into, कितना दे रहे हैं? फर्स्ट कॉल के लिए ₹3 एडवांस दे रहे हैं, फाइनल कॉल के लिए ₹2 एडवांस दे रहे हैं. मतलब ₹5 उन्होंने एडवांस दे दिए. 100 into 5, 500. एंड इन केस ऑफ बैंक अकाउंट क्या होगा? ये है अलॉटमेंट पार्ट. 25,000 into 3, दिस इज द अलॉटमेंट पार्ट एंड दिस इज द एडवांस पार्ट. एडवांस मतलब कॉल्स इन एडवांस. 100 शेयर के लिए ₹5 एडवांस मतलब 500. तो बैंक में कितना रिसीव हो? 75,500. उसमें से 75,000 फॉर शेयर अलॉटमेंट एंड 500 फॉर कॉल्स इन एडवांस. क्या नरेशन है? being allotment money received along with calls in advance of 100 shares. ये लिखना है, allotment money received along with calls in advance of 100 shares. Okay. Now फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री कोई चेंज नहीं है, क्योंकि कंपनी पूरे शेयर के लिए कॉल्स इन एडवांस पूरे शेयर के लिए कॉल करेंगे. तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल था ₹3. 25,000 into 3, 75,000. अभी हम लोग आएंगे रिसीव एंट्री पे. रिसीव एंट्री पे देखो 75,000 रिसीव नहीं होगा, क्योंकि इसमें से 100 शेयर के पैसे पहले ही मिल चुके थे. कंपनी ऑलरेडी रिसीव्ड फॉर 100 शेयर्स इन एडवांस. That means company will now receive 24,900 shares. Company will now receive money for 24,900 shares. So in the bank account, entry क्या हो रहा है? पहले हम लोग entry को देख लेते हैं. Bank account debit to share first call, ये तो होता ही है. और जो calls in advance हम लोग पहले एक account create किए थे, उसको हम लोगों को adjust भी करना है डेबिट करके. Now ये जो लायबिलिटी था, ये लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है. क्या हो रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट. देखो बैंक में 25,000 के शेयर्स के पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 100 शेयर्स के पैसे पहले ही मिल चुके थे. तो 24,900 शेयर्स के लिए ₹3 करके 74,700. ओके. कॉल्स इन एडवांस को हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन पूरे नहीं. जो फर्स्ट कॉल का था उसी को एडजस्ट करेंगे. 100 शेयर के लिए ₹3. ये एडजस्ट हो गए. कितना रहा? 300. एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. फर्स्ट कॉल अकाउंट में 75,000 ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट कॉल में
75,000 ही ड्यू था, और इसको ऐड करके देखो ये 75,000 ही आ रहा है. ओके, अभी चलो हम लोग फाइनल कॉल के ड्यू एंट्री पे जाते हैं. अच्छा, नरेशन. Being first call money received on 24,900 shares and calls in advance adjusted for 100 shares. Share next entry final call के due entry. Share final call account debit to equity share capital account. Number of shares 25,000, कोई reduce नहीं होगा share यहाँ पे, into ₹2. कितना ड्यू है? 50,000. फिर से बैंक अकाउंट डेबिट. पूरे पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि 100 शेयर के पैसे पहले ही मिल चुके थे. कितना मिलेंगे? 24,900 शेयर्स के पैसे. सो 24,900 इंटू ₹2, 49,800. कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना है. 100 शेयर, उसमें से ₹3 करके हम लोग ऑलरेडी फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किए हैं. अभी हम लोग फाइनल कॉल में एडजस्ट कर रहे हैं ₹2, क्योंकि फाइनल कॉल का ड्यू अमाउंट है ₹2. 100 इंटू 2, 200 पूरा एडजस्ट हो गया. और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 25,000 इंटू 2, 50,000. देखो यहाँ पे 200 एडजस्ट हुआ एंड फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट हुआ 300, तो टोटल 500 डेबिट हुआ और यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट भी था 500. दैट मीन्स ऐसे हम लोग कॉल्स इन एडवांस जो अकाउंट है उसको पूरा एडजस्ट करके कंप्लीट कर. अभी हम लोग एक छोटा सा सम्स करेंगे, बहुत छोटा. सम्स इतना बड़ा है लेकिन जब हम लोग इसका आंसर करेंगे देखेंगे एकदम छोटा सा आंसर है. ऐसा एक सम्स ऑलरेडी आ चुके हैं. ये भी कॉल्स इन एडवांस का ही सम्स है. क्या लिखा है पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में. श्रीजोनी लिमिटेड मतलब ये एक पब्लिक कंपनी है. रजिस्टर्ड विथ अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹50,000. नॉमिनल कैपिटल दैट मीन्स ऑथोराइज्ड कैपिटल consisting 5,000 equity share of ₹10 each. Make a public issue of 4,000 share. पूरे शेयर इशू नहीं किए हैं, 4,000 शेयर्स इशू किए हैं. Payable as below. कैसे है? एप्लीकेशन में 2, अलॉटमेंट में 4, फर्स्ट कॉल में 3, फाइनल कॉल में 1. ऐड करो 10 ही हो रहा है. 4 + 2 6 + 3 9 + 1 10. All the shares were applied for. मतलब कोई अंडर सब्सक्रिप्शन, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है. एंड ऑल मनी वर रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट्स. पूरे मनी रिसीव्ड हुए हैं एक्सेप्ट. नंबर ए, अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स pays the entire amount with allotment. Number B, another shareholder holding 300 shares pays the entire amount with first call. तो यहाँ पे देखो, first of all, 2 shareholders paying in advance. Another thing, they are paying in advance in different calls. Okay? क्या करना है? Show the journal entries in respect of amount received in allotment, first call and final call. पूरे एंट्रीज नहीं करना है, सिर्फ बैंक अकाउंट का एंट्री करना है. क्या है? शो द जर्नल एंट्रीज इन रेस्पेक्ट ऑफ अमाउंट रिसीव्ड. अमाउंट रिसीव्ड कहाँ पे होते हैं? बैंक पे होते हैं. सो बैंक के एंट्री दिखाने हैं. कौन सा? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल. इसके मतलब एप्लीकेशन के एंट्री नहीं दिखाने हैं. अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री पे नहीं दिखाना है. क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है. क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड है ऐसे अंडरलाइन करोगे. क्वेश्चन जब पढ़ोगे क्या रिक्वायरमेंट है वो अंडरलाइन करके देखो, रखो और क्वेश्चन का आंसर करो. तो चलो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग करते हैं. तो पहले हम लोग अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री करेंगे. ठीक है, तो क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस. पहले हम एंट्री को बोल दिए. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ये तो आएगा ही, और हम लोग जानते हैं यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस है, सो कॉल्स इन एडवांस को भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे. हो गया. अभी कितना आ रहा है बैंक में? देखो, एक तो 4,000 जो नंबर ऑफ शेयर्स था और अलॉटमेंट का ड्यू था ₹4. तो 4,000 इंटू 4 ये तो मिलेगा ही, कोई कॉल्स इन एरिया नहीं है. और 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर. पहले क्वेश्चन को पहले देख लेते, फिर से देख लेते हैं. अ होल्डर ऑफ 200 शेयर्स पेज द एंटायर अमाउंट विथ अलॉटमेंट. मतलब एक्स्ट्रा कितना दिया? ये 200 शेयर होल्डर्स
3+1, 4 रुपीज उन्होंने एक्स्ट्रा दिया विथ अलॉटमेंट। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 200 शेयर के लिए 4 रुपीज एडवांस मनी, तो कितना हो रहा है 16,000 और यहाँ पे 800। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड इन बैंक इज 16,800। उसमें से टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 16,000 एंड कॉल्स इन एडवांस का पार्ट देखो 200 इंटू 3+1 800। ये हो गया तुम्हारा अलॉटमेंट का रिसीव एंट्री। अभी हम लोग जाते हैं फर्स्ट कॉल के रिसीव एंट्री पे। फर्स्ट कॉल में देखो बैंक अकाउंट डेबिट, एक कॉल्स इन एडवांस डेबिट होगा। क्यों, यहाँ पे जो कॉल्स इन एडवांस मिले थे इसको हम लोग को एडजस्ट करना है। टू शेयर फर्स्ट कॉल अगेन देयर इज अ क्रेडिट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। क्यों, क्योंकि इन फर्स्ट कॉल देयर इज अनदर कॉल्स इन एडवांस। क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। नंबर बी पॉइंट, अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 300 शेयर्स पेज द एंटायर अमाउंट विथ फर्स्ट कॉल। मतलब फर्स्ट कॉल के साथ फिर से एक कॉल्स इन एडवांस है, तो इसके लिए हम लोगों को एक क्रेडिट एंट्री भी देना है। तो यहाँ पे देखो एक कॉल्स इन एडवांस डेबिट, अनदर कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट। ओके, तो अमाउंट को देखते हैं। बैंक में कितना आएगा, देखो एक तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना था 4000, उनमें से 200 शेयर्स का पैसा पहले ही मिल चुके हैं। सो अभी तो 4,000 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा 3,800 का शेयर का पैसा। तो 3,800 इंटू 3 अलॉट फर्स्ट कॉल का ड्यू था ₹3 और उसके साथ कुछ एडवांस भी मिल रहा है। कितना एडवांस मिल रहा है 300 शेयर्स का फाइनल कॉल का पैसा एक्स्ट्रा मिल रहा है। फाइनल कॉल में कितना था ₹1, तो कितना आ रहा है देखो 11,700। नाउ कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, ये कौन सा है, ये जो हम लोग यहाँ पे क्रेडिट किए थे ना 200 इंटू 3, क्योंकि फर्स्ट कॉल में 3 था, ये पोर्शन को हम लोगों को एडजस्ट करना है 200 इंटू 3। तो देखो कॉल्स इन एडवांस डेबिट 200 इंटू 3 600। ओके, फर्स्ट कॉल में हम लोगों को कितना मिलना था 4,000 इंटू 3 12,000 दिखा दिए यहाँ पे। एंड टू कॉल्स इन एडवांस, ये कौन सा है, जो अभी नया कॉल्स इन एडवांस है इन फर्स्ट कॉल 300 शेयर के लिए 1 रुपीज करके 300। अभी इसको चेक करो, यहाँ पे ऐड करो 12,300, यहाँ पे ऐड करो 12,300, बोथ आर इक्वल एंड दिस इज अ कंपाउंड एंट्री। ओके, अभी फाइनल कॉल में तो नया कोई कॉल्स इन एडवांस है नहीं, क्योंकि ये लास्ट है। सिर्फ कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करना है। क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर एडजस्टमेंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट लिखना भूल गए हम, यहाँ पे डेबिट लिखना है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, तो देखो अभी कितना बैंक में मिलने वाला है। बैंक में तो 4,000 के पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि 500 एक शेयर होल्डर 200 होल्ड कर रहे थे, एक शेयर होल्डर 300 होल्ड कर रहे थे, दोनों का मिला के 500 शेयर के पैसे पहले ही मिल चुके हैं। तो कितना बचा 3,500, इसके लिए पैसा मिलेगा ₹1 करके 3,500। उस जो कॉल्स इन एडवांस पहले हम लोग क्रेडिट कर चुके थे 2 अकाउंट पे 2 एंट्रीज पे, उसको हम लोगों को डेबिट भी करना है। देखो यहाँ पे 300 इंटू 1 था क्रेडिट, और यहाँ पे 200 इंटू 1, ये 3 तो ऑलरेडी हम लोग एडजस्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो 500 इंटू 1 ये कॉल्स इन एडवांस हमारा एडजस्ट हो गया टू शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में ड्यू था 4,000 इंटू 1 4,000। देखो डेबिट का टोटल भी 4,000, क्रेडिट का टोटल भी 4,000। ओके, दिस इज अनदर टाइप ऑफ कॉल्स इन एडवांस, जहां पे हम लोग देख रहे हैं 2 शेयर होल्डर 2 इंस्टॉल में कॉल्स इन एडवांस दे रहे हैं। सो ये पहले से डिफरेंट है, और यहाँ पे हम लोग पूरे सम्स किए नहीं, ये सम्स 4 मार्क्स के सम्स पे आ ही सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज के लास्ट सम, इस सम के एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है? एक्स्ट्रा फीचर्स है इस एक सम में कॉल्स इन एरियर भी है, कॉल्स इन एडवांस भी है, दोनों ही है एक ही सम पे, कॉल्स इन एरियर कॉल्स इन एडवांस। कैसे करेंगे? और ये भी
देखने में बड़ा सम है लेकिन एकदम छोटा सा सम आंसर पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि पूरे आंसर हम नहीं करेंगे। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ये पहले वाला सम और ये सम दोनों का पूरा आंसर घर में करना। हम सिर्फ छोटा सा 4 मार्क्स का सम कैसे हो सकता है वैसे दिखा रहे हैं। पहले तो हम लोग सम्स को पढ़ लेते हैं। क्या है? रियाज लिमिटेड हैड इशूड 15,000 शेयर ऑफ ₹15 ईच। कितना शेयर इशू किए? 15,000। कितना करके वैल्यू है? 15 रुपीज। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹7 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹5 ऑन कॉल। एक ही कॉल है। 3 एप्लीकेशन, 7 अलॉटमेंट, 10 हो गया, एंड 5 ऑन कॉल, 15 हो गया। कंप्लीट। All the money were duly received, except number A. One shareholder holding 800 share failed to pay allotment money. क्या किया है यहाँ पे? Failed to pay allotment money. That means यहाँ पे call scenario है, ठीक है? Another shareholder holding 1,000 share pays entire amount with allotment. That means ये है call scene advance. तो एक तो अलॉटमेंट के साथ कॉल सीन एरियर है, दूसरा अलॉटमेंट के साथ कॉल सीन एडवांस भी है। शो जर्नल एंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर कॉल। ओनली बैंक के एंट्री दिखाने हैं। कहाँ पे? ओनली इन अलॉटमेंट एंड कॉल। एप्लीकेशन को करना नहीं है और 2 इंस्टॉलमेंट का ओनली रिसीव एंट्री दिखाना है, ठीक है? तो करते हैं, पहले एंट्री को देख लेते हैं। देखो, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, कॉल सीन एरियर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कॉल सीन एरियर है यहाँ पे। अलॉटमेंट पे 1 शेयर होल्डर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 कॉल सीन एडवांस, क्योंकि कॉल सीन एडवांस भी है। अभी हम लोग अमाउंट को देखते हैं क्या क्या होगा। बैंक को बाद में देखते हैं, पहले कॉल सीन एरियर को देखते हैं। देखो, कॉल सीन एरियर कितना है हम लोग जानते हैं, 800 शेयर्स। 1 शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स failed to pay allotment money. That means call scene area में 800 into 7 कितना आ गया? 5,600। अभी allotment का ड्यू कितना था? 15,000 into 7, 15,000 उसका नंबर ऑफ शेयर्स था, 7 रुपीज करके अलॉटमेंट का वैल्यू, तो 1,05,000 शेयर अलॉटमेंट का ड्यू हो गया। कॉल सीन एडवांस, कितना एडवांस मिला? 1 shareholder holding 1,000 shares pays the entire amount with allotment. Entire amount मतलब क्या है? allotment के बाद तो एक ही कॉल है और कॉल का मनी है 5 रुपीज करके, सो 5,000 कॉल सीन एडवांस। अभी हम लोग बैंक पे जाते हैं। देखो, बैंक में नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 15,000। उसमें से 800 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, तो कितना शेयर का पैसा मिले हैं अलॉटमेंट के लिए? 14,200 इंटू 7 प्लस ये पार्ट है एडवांस का पार्ट, 1,000 शेयर का 5 रुपीज एडवांस मिला है, इसको ऐड करो, देखो 1,04,400। ऐसे करोगे तो कभी भूल नहीं होगा, कभी प्लस माइनस करके मत करना, क्योंकि कभी अगर भूल भी हो जाए तुम लोग पकड़ नहीं पाओगे कहाँ भूल हुआ है। अगर तुम लोग ऐसे लिख के करोगे तो कभी भी तुम्हारा भूल नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हम लोग अगर ऐड करते हैं, यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,10,000, और यहाँ पे भी देखो 1,10,000। हम लोग प्लस माइनस करके यहाँ पे नहीं बैठा है, जैसे जैसे होना चाहिए था वैसे किए, जैसे हम बोले हैं वैसे ही करना, देखोगे पूरा तुम्हारा टैली हो जाएगा। नरेशन, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड फॉर 14,200 शेयर्स, क्योंकि 800 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, along with calls in advance on 1,000 shares. Balance share transferred to calls in arrear account. Okay? अभी हम लोग कॉल का रिसीव एंट्री करेंगे। पहले एकदम चुपचाप से एंट्री को बैठा लेते हैं, एंट्री को पुट करते हैं। देखो, जो कॉल सीन एरियर मेरा अलॉटमेंट में था वो भी कॉल में भी होगा। ऐसा तो नहीं है कि कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा दिए, ऐसा नहीं हो सकता है। अलॉटमेंट का नहीं दिया मतलब कॉल का भी नहीं दिया,
ये इम्प्लाइड है, बोलने का जरूरत नहीं है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो पहले हम लोग एंट्री को देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, रिसीव तो कुछ होगा ही, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको हम लोग को एडजस्ट करना है, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे क्रेडिट कर चुके थे। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियर है, टू शेयर कॉल अकाउंट। अभी हम लोग अमाउंट को देखते हैं। देखो शेयर कॉल अकाउंट में क्या होगा, 15,000 इंटू 5 इसका ड्यू था एकदम 75,000। ओके, कॉल्स इन एरियर पे कितना होगा, देखो 800 शेयर्स डिफॉल्टेड था, कॉल मनी है 5 रुपीज करके, 800 इंटू 5 4,000। कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा, 1,000 शेयर्स का कॉल्स इन एडवांस था, उसको हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं डेबिट करके, सो 1,000 इंटू 5 5,000। अभी बैंक में देखो, बैंक में क्या हो रहा है, देखो बैंक में देखो टोटल शेयर था 15,000, उसमें से हम लोग यहाँ पे दिखाते भी हैं, टोटल शेयर था 15,000। ओके, उसमें से 800 शेयर्स नहीं मिले, कितना बचा 14,200, और उनमें से भी 1,000 शेयर्स का पैसा पहले ही मिल चुके हैं। तो अभी कितने शेयर्स के पैसे मिलेंगे, 13,200 शेयर्स के पैसे मिलेंगे। सो बैंक में कितना आएगा, 13,200 इंटू 5 दैट इज 66,000। अभी बोथ साइड टैली करो, यहाँ पे कितना आ रहा है 75,000, यहाँ पे भी 75,000 है, दैट मीन्स बोथ साइड टैली भी हो चुका। तो आज हम लोग क्या क्या किए पहले तो हम लोग एक कॉल्स इन एडवांस का, एक ही कॉल्स इन एडवांस पूरे सम्स किए, दूसरा किए है छोटा सा सम्स, दो इंस्टॉलमेंट पे 2 कॉल्स इन एडवांस है, और तीसरा सम्स हम लोग किए हैं कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस एक साथ। ओके, तुम लोग ये सब सम्स लिखोगे और करोगे, छोटा सा सम्स भी करोगे और इसका पूरा सम्स भी करोगे। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।